Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra, Prayagraj. Welcome to the class. We are continue with Shakespeare and yes, last day we started the study of his four great tragedies and one of the most important plays from him, that was Hamlet. We started studying last day and could not be completed, though we tried our best to complete. We could complete some of the points related to the background of the play. We could complete some of the points related to its publication and its writing, and no doubt about the characterization. And finally, we could move to the plot of the play, but could not be completed. Today, we will go with the statement of this play, and definitely we'll move with the next play. That's another very, very important play from Shakespeare, Othello, and we'll try to discuss its background, characterization, plot, and yes, one thing that's relaxing us here in this play is that statement of this play are not so much important like it has been there in Macbeth and Hamlet, so that will be relaxing. Before we move to the play, we have to go through the question session, and here's the first question of the day. What is the title of the play performed in Hamlet as a mousetrap? What's the title of the play performed in Hamlet as mousetrap? And we have the answer, starting with the reply of Sachin, Sarita, oh no, Sunita, not that, Shivani, Pradeep, Sarita, Tulika, Shashank, Abhishek, Janardhan, Neeraj, Kalpana, Lata, Jagrati, Manish, just check your answer beta, Santosh, Khushbu, Pooja, Mukta, Sapna, Sunita, Anju, okay, Sarika, Radhe Radhe Vijay, Dharmaraj. Okay, so right answer is The Murder of Gonzago. That is the name of the play performed as a play within play in the play Hamlet. Okay, what is the setting of the play Hamlet? What is the setting of the play Hamlet? Okay, we have the answer coming here from Sachin, Vinita, Pradeep, Preeti, Sarita, Tulika, Ritu, Mukesh, Pavan, Sarika, Vijay, Sapna, Lata. They have all answered it correct. The right answer is Denmark. That's a good one. What's the name of the university Hamlet was educated from? What's the name of university Hamlet was educated from? Okay, the answer starts here with Sachin, followed by Pradeep, Sarita, Shashank, Tulika, that's a good, Ritu, Vijay, Vijay's not Edinburgh. Oh, no, Sunita, what is that beta? Abhishek, Lata, Kalpana, Pavan, Shivani, they have all answered it correct. The right answer is the University of Wittenberg. Okay, going with the next. In which act and scene Ophelia breathes her last in Hamlet? In which act and scene Ophelia breathes her last in Hamlet? Okay, we have answers.
starting with the reply of Tulika. That's a good one, and right effort. Keep it up. Followed by Lata, Vinita, Kalpana, Meenakshi, Sachin. They've all answered it correct. The right answer is Act 4, Scene First. Going with the next one. Okay. Scene 7th, not first. Act 4th, Scene 7th, not the first one. Okay. Going with the next question. What's the name of the beloved of Valentine in Much Ado About Nothing? What is the name of the beloved of Valentine in Much Ado About Nothing? Okay, we find some answer on the screen coming from Shivani, Lata, Vijay, Sarita, Mukesh, Pradeep, Kalpana, Sunita, Kapil, Dharmaraj, Jagrati, Sarika, Meenakshi, Anju, and Sandeep, Sapna, Neeraj, Santosh, Suman, Mamta, Arthi, Mukta, and Janardhan. They have all answered it wrong because Valentine is not a character in Much Ado About Nothing. Okay, this is what happens. Going with the next one. What's the name of the son of Polonius in Hamlet? What's the name of the son of Polonius in Hamlet? And okay, Shivani. We start with the reply here that starts with Pradeep. That's good, Pradeep. Keep it up. And we go continuous with Kalpana, Pavan, Sachin, Sarita, Tulika, Lata. Pradeep, you answered twice. Okay. And well, it's Preeti, Dharmaraj, Sarika. They have all answered it correct. And the right answer is Laertes. Okay. Going with the next one. What is the setting of the play Merchant of Venice? What is the setting of the play Merchant of Venice? And the answer, Sachin, I will kill you, Pagal. Okay, so right answer starts with Dharmaraj, followed by Pradeep, Vijay, Mukta, Neeraj, Lata, Ritu, Meenu. Meenu beta, what is Venus? This is Venus. Venice, that is. Abhishek, Meenakshi, Jagrati, they have all answered it correct. The right answer is Venice. Okay, going with the next. What was the name of the post? What was the name of the post occupied by Henry Tudor when he was banished by King Henry VI? What was the title or post occupied by Henry Tudor when he was banished by Henry VI? Okay, so right answer starts with Alka, followed by Lata. Though it's not Duke of Richmond, it was Earl of Richmond. So right answer is Earl of Richmond. He was entitled with the post as Richmond there when he was banished by King Henry VI in Henry VI Part 3rd. Okay, what was the name of the wife of King Henry VI? What was the name of the wife of
King Henry VI. And we go with the answer that starts here with the reply of Alka. She is followed by Mukesh. No Kalpana, she is the queen of King Henry VIII. Okay, Lata, Santosh, Banita, Sunita, Arthi, they have all answered it correct. The right answer is Margaret of Anjou and like Queen Margaret. Okay, going with the next one. Which work is the primary source for the Roman plays? Which work is the primary source for the Roman plays? Okay, and we go with the replies that starts with Pradeep, Shivani, Sarika, Lata, Banita, Sarita, Shashank. Oh no, Shashank, that's not so. No, Dharmaraj, Meenu, Kalpana, Sachin. That's a good one, Alka. They all answered it right, and that is the work of Plutarch with the title of Lives of Caesar, Brutus and Antony, that was translated by Thomas North. Okay, going with the next one. Who said for Shakespeare, he was not of an age, but of all time? Who said of Shakespeare, he was not of an age, but for of all time? Okay, and we have the answer that started with the state reply of Pradeep, followed by Sachin, Kalpana, Sarita, Meenakshi, Abhishek, Lata, Alka, Janardhan, Banita, Meenu, Pooja. They have all answered it correct. The right answer is Ben Jonson. Which play of Shakespeare has the statement, smooth runs the water where the brook is deep? Smooth runs water where the brook is deep. Which play of Shakespeare has this statement? Smooth runs water where brook is deep. Which play of Shakespeare has this statement? Oh, no, Alka. Please don't take such names. That would be disheartening. No, Sunita, no, Dharmaraj. Well, that's somewhat correct and proper answer here we receive here from Mukesh. That's Henry VI, part 2nd. The statement comes from Duke of Suffolk in Act 3rd, Scene 1st. Okay. Which play of Shakespeare has a character James Tyrrell? Which play of Shakespeare has the character James Tyrrell? Okay, on we go with the answers. Well,
Oh, no, no, no. It's not so, Banita. So, right answer comes from Lata. She is followed by Kalpana and Sunita. They have all answered it correct. James Tarrell is a man who was asked by Richard III to murder the two sons of King Edward IV with the title Edward V and Richard Plantagenet in the play Richard III. Now I'll move to the last question of the day, and that is, which work is supposed to be the source for the play The Merry Wives of Windsor? Which work is supposed to be the source for the play The Merry Wives of Windsor? Which work is supposed to be the source for the play The Merry Wives of Windsor? That's the question. And we have some answers here on the screen. That we go with Mukesh. That's a good one. Kalpana. That's a good one. Shivani. Meenu, Mamta, Meenakshi. What is that, Jagrati? And Santosh and Kapil and Bhim, they have all answered it correct. The right answer is Al Pecorone, or can be the Palace of Pleasure. I think I should go for one more question, the easiest one, where you all can answer, because I think it was a tough one. Okay. Going with the next one, that would be easy, and that is, whom do we find as the confidant of Prince Hamlet? Whom do we find as confidant of Prince Hamlet? Whom do we find as confidant of Prince Hamlet? And that would be actually the last one. And I know that it would be all correct, starting with the reply of Sarita. That's good. She is followed by Pradeep, Sachin, Lata, Kalpana, Sarika, Janardhan, needed by check the spelling, and Shivani, Mukesh, Meenu, Abhishek, Preeti, Santosh, Ritu, Bhim, Dharmaraj, Khushbu, Banita, Sapna, Neetu, Suman, Meenakshi, Aarti, Kapil, Balram, Pooja, Sandeep, Sapna, Sunita, Jagrati, Banita, Vinita, Mamta. They've all answered it correct, and the right answer is Horatio. Now move with the statements. अब चलिए हैमलेट के स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं. Okay, the first statement comes from Polonius. Neither a borrower nor a lender be semicolon, for loan oft loses both itself and a friend, comma, and borrowing dulls
borrowing dulls the age of husbandry, EDGE, age of husbandry, that he delivers to his son Laertes in Act 1st Scene 3rd. Act 1st Scene 3rd. ओके, यहाँ पर एक खूबसूरत बात है, क्योंकि कई जगहों पर ये बहुत ही बुद्धिमानी वाली बातें करते हैं, लेकिन वो होते हैं ना कि जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं परेशानियाँ उनको ज़्यादा मिला करती है। पोलोनियस के लिए बात कही जाती है कि ये ऐसे वाइज मैन थे जिन्होंने अपनी डूम का निर्माण खुद किया था, है ना, अपने लिए विनाश का रास्ता खुद देखा था। तो यहाँ जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई है कि नीदर बारोवर नॉर लेंडर बी, हमें कोशिश करना चाहिए कि ना हम किसी से लें और ना ही हम किसी को दें। क्यों? क्योंकि ये जो लोन होता है, लेने देने का काम, ऑफ्ट लूजेस इटसेल्फ एंड फ्रेंड। अक्सर ऐसा होता है कि लोन तो जो आप दिए हैं वो तो खो ही जाता है। जिस फ्रेंड को आपने दिया अगर दोबारा आपने मांग लिया तो वो फ्रेंड भी आपसे खो जाता है। तो दोनों के खोने का डर होता है, और उसके साथ जो एज ऑफ हस्बैंड्री है उसको भी कमज़ोर कर देता है। मतलब जो हमारे बीच में प्रगाढ़ रिश्ता होता है, भरोसा होता है, उसको भी कमज़ोर कर देता है। इतना नुकसान है, इसलिए लेटिस को समझाता है कि आप पेरिस जा रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि खर्च उतना हो जितना आपका पर्स उसको बर्दाश्त कर सके। अगर अर्निंग ना हो तो खर्च को लिमिटेड कर देना चाहिए, क्योंकि वह भी एक तरीका है कमाने का। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गॉट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, रिचर्ड स्टील साहब ने आपको बताया हुआ है द स्पेक्टेटर क्लब में, सॉरी ऑफ स्पेक्टेटर क्लब का जो कॉम्बिनेशन है उसमें बताया हुआ है स्पेक्टेटर क्लब के लिए। तो वो सही उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो बचा भी ले रहे हैं तो भी आपका वो कमाना ही है। तो जब हमारी अर्निंग कम हो तो एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। परेशानी लाइफ में तब आती है जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और अर्निंग हमारी कम हो जाती है। दैट इज़ अ बिग इशू, क्योंकि उसमें ना तो हम लोन लेकर किसी का दे पाते हैं और फिर रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए बाहर जा रहे हो, कास्टों से बाहर रहते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही खर्चा करो जितने में आपको तकलीफ़ ना हो और आपके अपने लोगों को तकलीफ़ ना हो, है ना। शोविनेस में नहीं चलना। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, दैट वी गो विद द स्टेटमेंट ऑफ हैमलेट। The time is out of joint. The time is out of joint. Full stop. O cursed spite. O cursed spite, comma, oblique. That I was born to set it right. That I was born to set it right. Okay, the statement he delivers to Horatio and Marcellus in Act 1st Scene 5th. Act 1st Scene 5th. Act 1st Scene 5th. Okay. एक्चुअली ये वो सीन है जहाँ पर पहली बार प्रिंस हैमलेट अपने फादर को देखता है और फादर ने सारी बात नरेट कर दिया कि क्या क्या उनके साथ हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, मतलब समय जो है वो फेवरेबल नहीं है। समय थोड़ा सा विकेट चल रहा है, आउट ऑफ जॉइंट है, सही प्लेस पर नहीं है। और ख़राब बात क्या है? occurs despite that I am to set it right. मैं जिसको समय के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है,
मुझे ये जिम्मेदारी मिल रही है टू सेट इट राइट, इसको सही करने का। मेरे फादर ने मुझसे कहा है कि तुम्हें बदला लेना है। मैं बदला लेने में की नहीं करता हूं, लेकिन फादर ने आदेश भी मुझे ही किया हुआ है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य क्यों कहा उसने, कर्स डिस्पाइट क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं बदला लेता हूं तो अपनी मां को विधवा करता हूं, और अगर नहीं लेता हूं तो अपने फादर का डिसलॉयल सन हो जाता हूं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में मैं फंसा हुआ हूं कि इस विषम स्थिति को राइट करने की जिम्मेदारी उसको मिल रही है जो खुद ही आउट ऑफ जॉइंट है। मैं पहले से मैं ये सोच रहा हूं मेरे दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और मुझे ये मेरे फादर ने जिम्मेदारी दे दी। टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट बहुत ही फेमस है, कर्स इंस्पायर्ड दैट आई एम टू सेट इट राइट, है ना। ये सीनियर हैमलेट के घोष से मिलने के बाद का उनका स्टेटमेंट है, होरेशियो और मार्सेलस से। चले आते हैं हैमलेट का एक और फेमस स्टेटमेंट लेते हैं, बहुत ही फेमस, ऑलमोस्ट सारे ही फेमस हैं। What a piece of work is a man. What a piece of work is a man. Mark of exclamation. How noble in reason. How noble in reason. Mark of exclamation. How infinite in faculty dash 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 in apprehension comma how like a god, how like a god, mark of exclamation. The beauty of the world, the beauty of the world, mark of exclamation. The paragon of animal, paragon of animal, mark of exclamation. To Rosencrantz, to Rosencrantz in act second scene second, act second scene second. एक्चुअली ये जो लाइन है पूरी जो स्पीच है, इसको हम लोग एक आइडियल स्पीच मानते हैं जब हम रेनेसा के टाइम में यूनिवर्सल मैन की बात करते हैं। आपको मालूम है रेनेसा के दौर में लिखा गया है, शेक्सपियर was one of the greatest poets born during the spirit of Renaissance, और उन्होंने मैन को किस तरह से चेंज हुआ है, मैन क्या क्या उसके अंदर खूबी है, उसके लिए उन्होंने तारीफ किया है। ये स्टेटमेंट स्पेशल रोजेनक्रैंत्ज से करते हुए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। इंसान भी क्या खूबसूरत की रचना है ईश्वर की। हाउ नोबल इन रीजन, ईश्वर ने काबिलियत दिया है इसको कि अपने रीज़न का यूज़ करे, सही गलत का निर्णय ले सके और अपने आप को नोबल सही रास्ते पर रख सके। हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, इसकी जो अपनी फैकल्टी है, इसकी जो अपनी क्वालिटी है, इसके अंदर जो गुण हैं वो इन्फिनिट हैं। किसी भी जानवर को इतनी फैकल्टी मिली ही नहीं है। किसी के पास हाथ है तो पैर नहीं है, किसी के पास दिमाग तो ऑलमोस्ट के पास नहीं है, इसके पास सब कुछ दिया है उसने। अगर आप इसको आगे चल के देखिए तो कहते हैं कि हाउ लाइक अ गॉड इन अप्रहेंशन, और इसकी समझ, इसका निर्माण करने की क्षमता इतनी बेमिसाल है, लाइक अ गॉड। चीज़ों को समझ बड़ी आसानी से लेता है, चीज़ों को कॉपी बड़ी आसानी से कर लेता है, और जैसे परमात्मा ने पूरा यूनिवर्स निर्माण किया है ना, उसी तरह से यह भी काबिल है कि एक यूनिवर्स का निर्माण कर सके। आपको मालूम होना चाहिए, इसी समय के जो साइंटिस्ट थे डेस्कार्टिस, रेनेसा के टाइम के थे, उन्होंने कहा था गिव मी एक्सटेंशन एंड मूवमेंट, आई विल क्रिएट अनदर यूनिवर्स।
मतलब ये जो ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है, मैं ऐसा ब्रह्मांड आपको बनाकर दे दूंगा, मुझे अगर एक्सटेंशन और मूवमेंट मिल जाए तो ब्रह्मांड की रचना करने की क्षमता भी इस इंसान में है। ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी खूबसूरत रचना जिस संसार में है, वो संसार इस खूबसूरत रचना के होने से खूबसूरत हो जाती है। इंसान ही तो है जो ये बताता है कि ये वस्तु खूबसूरत है, ये खूबसूरत नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। दूसरे कोई जीव तो इसके बारे में बात करते नहीं। तो एक्चुअली इंसान को मालूम चलता है इस संसार के बारे में कि क्या खूबसूरत है, और इंसान ही सबसे खूबसूरत है इस संसार में। पैरागॉन ऑफ एनिमल, इस ज़मीं पर जितने भी एनिमल हैं, सारे एनिमल का श्रेष्ठ है, ये आदर्श है उनका, ये पैरागॉन है, वो इन्फिनिट। तो ये जो स्पेशली जो अप्रिशिएशन है, उसको हम लोग एक वर्डिंग में कहते हैं यूनिवर्सल मैन की बात कर। शेक्सपियर ने इसमें यूनिवर्सल मैन या न्यू मैन की बात किया है। ओके, चलते हैं विद द नेक्स्ट वन। अगेन फ्रॉम हैमलेट। There is divinity, there is a divinity that shapes our end, that shapes our end, comma, rough them how you will, rough them how you will. Okay, it's delivered to Horatio in Act 5th, Scene 2nd. Act 5th, Scene 2nd. Okay, मैं अक्सर इस स्टेटमेंट की बात करता रहता हूँ। शायद मैंने जब जूलियस सीजर पढ़ाया था तब भी मैंने चर्चा किया था कि शेक्सपियर के जो विलेन हैं, चाहे वो यागो हो, चाहे वो सीजर हो, ये भाग्यवादी नहीं है। लेकिन जो शेक्सपियर के हीरोज़ हैं, चाहे वो एंटोनियो हो, चाहे वो किंग लियर हो, चाहे वो मैगबेथ हो, चाहे वो ओथेलो हो, ये सारे के सारे, या अगर आप ब्रूटस को भी इंक्लूड कर लें, ये सारे के सारे भाग्यवादी हैं। उसी फेज से ये स्टेटमेंट आता है जिसमें लास्ट स्टेज में एक्ट 5th सीन 2nd, क्योंकि 2nd सीन तक ही ये प्ले है, उसी में होरेशियो को ये समझाते हुए कहते हैं कि देखो, सबके नसीब में एक जैसी चीज़ें नहीं होती। दैट्स द डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड। अगर भाग्य न होता तो मैं तो इंग्लैंड जा रहा था ना, मुझे तो इंग्लैंड भेजा गया था, तो मैं वापस यहाँ कैसे आ गया? मेरा नसीब मुझे खींच कर यहाँ ले आया। इसलिए कई चीज़ें, और आपने अगर ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो जब वो इस गेम के लिए जाता है तो ना तो लेयर्टीज को मारने का उसका मूड होता है, ना ही अपने चाचा को ही मारने का मूड होता है। ही गोज विद अ प्योर हार्ट टू प्ले इट विद लेयर्टीज, और उसको उस गेम में डिफीट करना, इतना किल करना नहीं था। बट द डिविनिटी इज हैविंग समथिंग एल्स, कुछ और ही नसीब लेकर बैठा हुआ है कि आप जाओगे और आपको पॉइजन स्वर्ड का सामना करना पड़ेगा। जो मारने के मूड में नहीं गया था वो किलर बन जाता है। डिविनिटी है कि मदर एक्साइटेड होकर के पॉइजन्ड वाइन को पी लेती, दैट्स द डिविनिटी। सो वी आर नोवेयर, वी आर द पार्ट ऑफ द गेम गॉड्स प्ले विद अस, है ना। हम ईश्वर की दुनिया के एक गेम है, खेल हैं, और अपने खेल के लिए वो कब किसको खत्म कर देगा, कब किसको नया ले आकर रख देगा, वी डोंट नो। रफ देम हाउ यू विल, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। इट्स अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड। हम कैसे होंगे, क्या होंगे, कहाँ खत्म होंगे, कहाँ मिलेंगे, everything has been defined
बाय गॉड। आप सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हो कभी सोचे भी नहीं होंगे, कभी पहले की बात सोचिए, कभी सोचे नहीं होंगे कि हम सारे एक साथ मिलेंगे, अलग अलग जगह से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। बट दिस इज डिविनिटी, जिसने टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाल दी, है ना। आप सारे लोग यहाँ आ गए, सारे साथ में जुड़ गए। दैट्स अ डिविनिटी। कुछ न कुछ रीजन होती है, सबको जोड़ती है, बट इट इज डिविनिटी दैट डज एवरीथिंग। हम लोग कभी कभी सोच लेते थे, इसीलिए करें रफ देम हाउ यू विल। कितनी भी कोशिश कर लो, जो भी करना है, करता सब कुछ वही है, वही है सो जो राम रचिरा का। आइए चलते हैं आगे। अगेन फ्रॉम हैमलेट। परेशान ना हो विनीता, ऐसा ही होता है। फ्रेल्टी, thy name is women, oblique, a little month, or are those shoes were old, after space, why she, comma, even she, oblique, oh God, a beast, oh God, a beast that wants discourse of reason, that wants discourse of reason, oblique, would have mourned longer, would have mourned longer. Des, married with my uncle, married with my uncle. Okay, the statement comes in act first, scene second to Gertrude. To Gertrude. ओके, सी ये बहुत ही फेमस है। आम तौर पर जब कभी हम लोग जो वीमेन होती है ना, उनको अगर थोड़ा सा हम कमज़ोर दिखाना चाहते हैं तो कहते हैं, शेक्सपियर ने भी कहा है, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वीमेन। एक्चुअली फ्रेल्टी का जो सेंस होता है वो एलोबरेशन में चले जाओ तो इनफिडेलिटी हो जाता है। बट अगर वर्बल आप चले जाओ, जैसे आप डिनोटेशन और कोनोटेशन लेते हैं ना, तो अगर आप डिनोटेशन में जाओ तो आपको अनसर्टेनिटी दिखाता है, इनस्टेबिलिटी दिखाता है, अस्थिरता दिखाता है। मतलब आप चंचल होते हो, आप दूसरे शब्दों में कहें तो फिसल जाते हो। और उसी को अगर आप कोनोटेशन में लेके चलो तो दैट इज टू गो फॉर समथिंग लाइक फिजिकल नीड। फ्रेल्टी दाई नेम इज वीमेन, ये जो अस्थिरता का दूसरा नाम है वो कोई और नहीं, औरत है। क्यों ऐसा वो कह रहा है? कहता है अ लिटिल मंथ और एल्स दो शूज वर ओल्ड। अभी महीने भर नहीं हुआ था, या यूं कहूं कि मेरे पिताजी के पहने हुए जो शूज थे अभी उन पर धूल भी नहीं जमा हुई थी। भाई पुराने हो गए होते तो धूल जमती। अभी उनके शूज जो है वो रबड़ी ही है, शाइनिंग ही है। और मैं क्या कहूं, वाई शी, ऐसा क्यों है, उसने ऐसा किया। इवन शी, अरे दूसरा कोई भूल गया होता तो ठीक भी समझ में आता है, मेरी मां कैसे भूल सकती है। कहता है कि एक बीस्ट भी होता ना तो वुड हैव मॉर्न्ड इवन लॉन्गर। एक जानवर भी अपने साथी को खोता है ना, जिससे ज्यादा वक्त तक वो रोता है, विलाप करता है। तो मेरी मां क्यों नहीं की? क्यों उसने शादी कर लिया? मेरे ही अंकल से, मेरे फादर के भाई से, जो मेरे फादर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों कर लिया उसने? बिकॉज फ्रेल्टी दाई नेम इज
फीमेल, है ना। तो थोड़ा सा इसको है, लेकिन मैं इसको बिटरनेस में नहीं ले चलता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि समवेयर जो जर्ट्रूड ने किया था उससे हैमलेट के मन में ऐसी सोच आना बहुत लाजमी थी, क्योंकि कोई भी होगा वो ये जरूर सोचता है, कहता है ना कि ओ गॉड, अ बीस्ट दैट वांट्स डिस्कोर्स ऑफ रीजन वुड हैव मॉर्न्ड लॉन्गर। मतलब जो जानवर होता है जिसके पास दिमाग की कमी होती है, अगर थोड़ा सा भी वो सोचे तो इनसे ज्यादा वक्त तक उसने विलाप किया होता अगर उसने अपने साथी को खोया होता। और मेरी मां मेरी चाची बन गई इतना जल्दी। चलो, we go with the next one, and that comes so again from Hamlet in his first soliloquy. Oh God, God, how weary, stale, flat, and unprofitable, oblique, seem to me all the users of this world, Okay, that comes in Act first, Scene second, in his first soliloquy. How very stale, flat, and unprofitable seem the users of world to me, है ना। कितना खूबसूरत लाइन लिखा है, क्योंकि अक्सर ये फीलिंग होती है कब, when we lose our loved one, जब हम किसी अपने साथी को, अपने प्यारे को खोते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये फीलिंग हमारे मन में आती है कि ये जो वर्ल्ड है वो वेरी हो जाता है। हाउ वेरी, थकावटी, ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। स्टेल, कुछ भी नया नज़र नहीं आता। फ्लैट, ऐसा लगता है बस जी रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जॉय नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है। एंड अनप्रॉफिटेबल, कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में जीने का। क्यों? क्योंकि सारा कुछ मेरे लिए बेकार हो चुका है। ये वर्ल्ड बेकार हो गया। ये सारी फ्रेशनेस, ऐसा नहीं है कि फ्रेशनेस आ ही नहीं रही, लेकिन मुझे वो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि सोच का बहुत असर पड़ता है। जैसी सोच ऐसी हो गई है कि हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अब तो मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में रहना सब अनप्रॉफिटेबल है, किसी मतलब का नहीं है, किसी अर्थ का नहीं है, सब बेकार हो गया है मेरे लिए। टू मी इन्होंने कहा, सबके लिए नहीं, लेकिन मेरे होने का रीज़न खत्म हो गया, मेरा फादर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, again from Hamlet. O most pernicious women, O most pernicious women, oblique, O villain, villain, smiling, damned villain, O villain, villain, smiling, damned villain, smiling, damned villain, oblique, my tables, mark of exclamation, dash, meat it is, meat it is, I set it down, set it
down, oblique, that one may smile and smile and be a villain. One may smile and smile and be a villain. Okay, the statement comes in Act 4, Scene 5th, in the second soliloquy. ये हैमलेट की सेकंड soliloquy है, जिसमें वो अपनी मदर को ही पर्निशियस विमेन कहते हैं, जबकि उनके फादर का घोस्ट उन्हें इंस्ट्रक्ट करके गया था कि आपको अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सोचना है। लेकिन नाराज़गी शायद हैमलेट की इस बात से ज़्यादा है कि उन्होंने शादी क्यों कर ली। मतलब डेथ होती रहती है, वो होती है, लेकिन उन्होंने शादी क्यों की? उनको नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो उनका हस्बैंड था वो उन्हें बहुत लव करता था, तो क्यों कर लिया उन्होंने? ये पॉइंट उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। और चाचा के नेचर को देख रहा है क्लॉडियस, उनके बारे में उन्होंने कहा ना कि स्माइलिंग एंड डैम्ड स्माइलिंग विलेन। मतलब ये आदमी सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रहता है, मुस्कुराता रहता है और बहुत खतरनाक विलेन बनता है, क्योंकि सामने से मुस्कुराने वाले और पीठ पीछे धोखा देने वाले लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। मेरा चाचा ऐसा ही है। मैंने भी कुछ डिसाइड किया है। स्माइल एंड बी अ विलेन। मैं भी वैसे सिखाऊंगा जो मेरे चाचा ने किया है ना, मुस्कुरा के मेरी लाइफ में इतना ट्रेजेडी कर डाला है। मैं भी स्माइल करूंगा। स्माइल एंड बी अ विलेन बनता हूं। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अगेन हैमलेट। Now I'm alone. Public. Oh, what a rogue. Oh, what a rogue and peasant slave am I. Peasant slave am I. Okay, that comes in the third soliloquy in Act 2, Scene 2. Okay, हैमलेट अपने आप को अकेला करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसके सामने या उसके साथ में ढेर सारे लोग रहेंगे तो इन दैट केस वो जो सोच रहा है उसको एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाएगा, उसको शो नहीं कर पाएगा। इसलिए वो कोशिश करता है कि एलोन रहो, क्योंकि एलोन रहेंगे तो हम क्या सोचते हैं वो व्यक्त करेंगे। इसलिए कहता है नाउ आई एम अलोन, ओ व्हाट अ रॉग एंड पीजेंट स्लेव आई एम आई। अब मैं क्या कहूं अपने बारे में? कितना रॉग हूं मैं, कितना मैं पिकारो बन गया हूं। मेरे पास कोई मैनर नहीं, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, और मैं पीजेंट हो गया हूं, अनपढ़ गवार स्लेव बनकर रह गया हूं मैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे बाप का कातिल मेरे सामने खड़ा रहता है और मैं उसी के सामने जी हुजूरी करता हूं। मेरे तकलीफ को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाए, कोई समझ नहीं पाएगा। दिस इज वाई स्लेव एम आई। मैं स्लेव हूं। एक वो 14 ब्रास है जिसके फादर को मेरे फादर ने बैटलफील्ड में मारा और वो बदला लेने चला आ रहा है, जबकि बैटलफील्ड में कोई भी किसी को मार सकता है
और मेरे चाचा ने कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मेरे ही फादर को मारा और मैं उसके सामने खड़ा होकर के उसकी जी हुजूरी करता हूँ। कितना खराब गिरा हुआ अनपढ़ गवार स्लेव में हूँ। व्हाट अ रॉग एंड पीजेंट स्लेव एम आई। इससे बेकार बेटा किसी के पास नहीं हो सकता। अपने आप को कोश रहा है। चले आते हैं नेक्स्ट में। एंड दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट है, पूरे स्टेटमेंट आपकी टंग पर होने चाहिए। मैंने एज यू लाइक इट के लिए भी यही बात कहा था और यहाँ भी कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड दैट गोज विद हैमलेट अगेन इन हिज फोर्थ soliloquy, टू बी और नॉट टू बी, to be or not to be, semicolon, that is the question, that is the question. Colon, whether it is nobler in the mind to suffer full stop, the slings and arrows of outrageous fortune, the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms, or to take arms against a sea of troubles, and a sea of troubles, and by opposing end them, by opposing end them. The statement comes in a fourth soliloquy, that is in Act 3rd, Scene 1st. Act 3rd, Scene 1st. Okay. To be or not to be. ये बहुत ही फेमस इस प्ले का स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस है और ऑफन कोटेड. That shows the state of confliction. When we are in a state of conflict, we are unable to decide what to do. To be or not to be is actually the state of conflict. जब ये नहीं समझ में आ रहा है हैमलेट को करना क्या है, to be और not to be. अगर इसके हम वर्बल सेंस में जाएं तो इसका मतलब होता है कि हम जिंदा रहें या जिंदा ना रहें. That's the question. ये सवाल हमारी जिंदगी, हमारे अस्तित्व का हो गया. अब ये बात हमें समझ में नहीं आ रहा है. Whether it is nobler to suffer. अब दो तरीके होते हैं. तरीका एक ये है कि या तो मैं सफर करूं किसका, the slings and arrows of outrageous fortune. जो फॉर्चून है, जो नसीब है, जो मेरे से नाराज है, आउटरेजियस, गुस्से में, और हर बार वो अपने तीखे वार से, नसीब मेरे खिलाफ चल रहा है, हर बार अपने तीखे वार से मुझे परेशान करता है, अपने तीरों से मुझ पर वार करता है, तो मैं इसको सफर करूं, और या फिर बाई और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल्स, या फिर मैं शस्त्र उठा लूं सी ऑफ ट्रबल्स के खिलाफ. जिस ट्रबल का कोई एंड नहीं दिख रहा है, कोई अंत नहीं दिख रहा है, उस ट्रबल से लड़ने के लिए या तो मैं शस्त्र उठा लूं, उससे लड़ जाऊं, एंड अपोजिंग एंड देम, और सारी समस्याओं का विरोध करते हुए उन समस्याओं को मैं एंड कर दूं. क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मैं कहां पर जाऊं, अपोज करूं, मैं युद्ध करूं, लड़ूं, या फिर सफर करूं, क्योंकि दोनों बातें सही हैं. एक और अगर मैं सफर करता हूं तो सिर्फ मैं परेशान होता हूं,
मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। एंड क्रिश्चियनिटी सेज सफरिंग इज द सोर्स ऑफ प्योरिटी ऑफ सोल। जीसस क्राइस्ट ने भी सफर किया है, आप लोगों ने पैराडाइज रीगेन पढ़ा होगा। खुद को सफर करके दूसरों की हेल्प करना या दूसरों को खुशी देना, ये क्रिश्चियनिटी की पहचान है। लगभग हर धर्म में यही कहा गया है। हमारे पास दधीजी जी का बहुत बड़ा उदाहरण है, आप लोग तो जानते ही हैं, है ना, कि दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की मदद के लिए खुद के जीवन का बलिदान दे देना, सफर करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो वेदर इट इज नोबलर टू सफर, समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। यहां पर मेरे लिए सफर करना, जो मैं सफरिंग से चल रहा हूं, वो नोबलर होगा। मैं ये स्लिंग्स एंड एरोज जो फॉर्चून मेरे ऊपर चला रहा उसको मैं बर्दाश्त करता रहूं, या फिर मैं उसका विरोध करूं और अपने अधिकार की लड़ाई करूं, और जो ये सी ऑफ ट्रबल से मैं उसका अपोज करूं। मैं करूं क्या? दैट कॉन्फ्लिक्ट was said by G.B. Shaw, no conflict, no play. जितना अच्छा कॉन्फ्लिक्ट आप प्ले में बनाएंगे उतना अच्छा आपका प्ले होता है। और कॉन्फ्लिक्ट इनर और आउटर हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। जब एक आदमी खुद में डिवाइडेड हो तो दुनिया के सबसे खूबसूरत कॉन्फ्लिक्ट से होकर जा रहा होता है। दैट्स Hamlet is passing through. To be or not to be. And act third, scene first. Going with the next one, that's again from Hamlet, the fifth soliloquy. It is now the very witching time of night. Dash dash dash. Let me be cruel. Let me be cruel, comma, not unnatural. Oblique. I will speak daggers to her. I will speak daggers to her, but use none. Okay, that comes here in Act 3rd, Scene 2nd. Again, it's a soliloquy, as I told you, the fifth one. Statement की शुरू देखिए, now it is now the very witching time of night. रात के वक्त में ऐसा माना जाता है कि ये सुपर नेचुरल पावर्स का समय होता है। नाउ वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट, मतलब इसमें शैतानी ताकतें जो हैं वो दुनिया पर इधर उधर घूमती और मंडराती रहती, लोगों को परेशान करती हैं। मुझे भी शायद परेशान कर रही हैं, उनके गिरफ्त में मैं भी हूँ। मुझे मालूम है ये सारे शैतान आसपास घूम रहे हैं। मुझे इस समय अपनी माँ से बात करना है, लेकिन माँ से मुझे सॉफ्ट होके बात करना है। क्यों? क्योंकि फादर ने इंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन मैं सॉफ्ट हो कैसे सकता हूं? क्योंकि मैं तो अपने आप को पागल बना लिया हूं ना। और पागल क्या समझे कि मेरी मां है कि किसी और की मां है। पागल का मतलब है कि वो सेम रिएक्शन देगा। इसलिए आई विल स्पीक डैगर टू हर, बहुत फेमस ये लाइन है, आई विल स्पीक डैगर टू हर बट यूज नन। मैं अपने मां के सामने जाऊंगा, उसको ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा जो शायद खंजर से भी ज्यादा खतरनाक होंगी उनके सीने को छलनी करने के लिए। लेकिन मैं डैगर का यूज नहीं करूंगा, शस्त्र का यूज उनके खिलाफ नहीं करूंगा।
शब्दों से ज़रूर वार करूँगा, लेकिन हार्ट में मेरे पास माँ के लिए नफ़रत नहीं होगी, मेरे हाथ में माँ के खिलाफ शस्त्र नहीं उठा होगा, लेकिन ज़ुबान मेरी एक एक से मिसाइल दागे रहेगी, है ना। ज़ुबान से तो मैं चलता रहूँगा। दैट इज़ I will speak daggers to her but use none. Now we go with the next soliloquy from Hamlet. Again Hamlet. A villain kills my father. A villain kills my father. Semicolon. And for that, oblique, I his sole son, I his sole son, comma, do this same villain send oblique to heaven. Okay, the statement comes in Act 3rd, Scene 3rd, as the 6th soliloquy. A villain kills my father. Actually, ये वो जगह है जहाँ पर पहले तो कंसीडर करता है माँ से मिलना है, क्योंकि माँ ने संदेश भिजवाया है कि मुलाकात करो आफ्टर दी माउस ट्रैप, तो उनसे मिलने जाना है। लेकिन उनके पास जाने के वक्त हमारी क्या माइंड सेट होनी चाहिए, वो उसको बना लेता है। रास्ते में जब वो देखता है तो उसका चाचा जो है वो प्रेयर कर रहा होता है और कन्फेशन कर रहा था। क्लॉडियस, उसने जो कुछ किया सारा कॉन्फेस कर रहा है और सुनता भी है। हैमलेट सुनता भी है, लेकिन उसको मार नहीं सकता। A villain kills my father. जिसने मेरे फादर को किल किया वो विलेन था और मैं उस फादर का लड़का हूं। मेरे सामने ये विलेन सामने जो प्रे कर रहा है, मुझे इसको किल करना चाहिए, इसकी जान लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी जान ले लेता हूं तो ये तो स्वर्ग पहुंच जाएगा। मैं अपने पापा का अच्छा बेटा हूं ना, तो मैं विलेन को स्वर्ग नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए बाद में मानता हूं, अभी नहीं। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। दैट कम्स फ्रॉम द 7th एंड लास्ट soliloquy फ्रॉम Hamlet. How all occasions do inform against me. How all occasions do inform against me, oblique, and spur my dull revenge. Spur my dull revenge. Mark of exclamation. What is a man? Oblique. If his chief good, if his chief good okay, so the statement that we go is actually the estimation of man. Again वो मैन के बारे में सोचता है कि आखिर ये मैन है क्या, है ना। जिस मैन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसको कहता है कि हाउ डल, ये आदमी जो है कितना डल है, कितना सुस्त है। हाउ डल रिवेंज, ये डल रिवेंज क्यों है? क्योंकि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। व्हाट इज द मैन इफ हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम इज टू फीड एंड स्लीप। मतलब आदमी है क्या, और एक आदमी होने की वजह से उसका काम क्या है, व्हाट इज हिज फंक्शन। केवल इतना काम है, खाओ पियो सो जाओ, ये काम करने के लिए आया? नो बीस्ट,
अगर सिर्फ इतना हम करते हैं कि इस दुनिया में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, तो हम इंसान नहीं हैं। हम अपने आप को इंसान ना कहें, हम जानवर हैं। क्योंकि इंसान तो वो है जो अपने दिमाग का यूज करे। इंसान तो वो है जो अच्छे और बुरे का डिफरेंस ले। इंसान तो वो है जो दूसरों के लिए खुद को सफर कराए। जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि खाओ पियो और सो जाओ, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वो एक्चुअली इंसान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जानवर है, और मैं जानवर नहीं बन सकता। एक्चुअली आपको मालूम होना, धीरे धीरे करके उसका जो था ना एक मोड है, वो शिफ्टिंग की ओर था। हालांकि जैसे उसने लास्ट में कहा कि डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, तो डिविनिटी ने सब कुछ बदल दिया। अदरवाइज उसने बहुत सी चीज़ों को अपने आप चेंज कर लिया था। चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट से, एंड दैट इज फ्रॉम पोलोनियस वंस अगेन। गिव एवरी मैन thine ear, comma, but few thy voice, oblique, take each man's censer, comma, but reserve thy judgment, oblique, costly thy habit, as thy purse can buy, Okay, so that comes in Act 1st, Scene 3rd, 2 Laertes. Act 1st, Scene 3rd, 2 Laertes. ये भी काफ़ी सुना हुआ, काफ़ी यूज़ किया, एक प्रोवर्बियल सा हो गया है, जिसको हम लोग अपने हिंदी में कहते हैं, सुनो सबकी, करो अपने मन की, है ना। दैट्स द पॉइंट हियर। गिव एवरी मैन दाइन ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। आपको सुनना सबकी बात है। किसी ने अच्छा कहा वो भी सुन लो, किसी ने गलत कहा वो भी सुन लो। अरे किसी के कहने से आप ना अच्छे हो जाते हो, ना किसी के कहने से आप खराब। आप अच्छे और खराब अपने लिए होते हो। वो दुनिया का नज़रिया है देखने का, है ना। कि नज़रिए का फ़र्क है। किसी को पत्थर में ईश्वर दिखता है तो किसी को बिना पत्थर ईश्वर दिखता है। नज़रिए की ही बात है। मानने से सब कुछ है। इसलिए सुनना गलत नहीं है। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है वो भी सुनो। फ्यू दाई वॉइस। लेकिन आपकी जुबान, आपकी बात को हर कोई सुने, वो डिजर्विंग नहीं होता। वो डिजर्विंग नहीं होता। हर कोई आपकी बात को सुने, ये डिजर्विंग नहीं होता। इसलिए हर किसी से अपनी बात को नहीं कहना चाहिए। दाई वॉइस अ फ्यू। सुनने के लिए तो सबकी सुन लो, एवरी मैन की। लेकिन जब बोलना हो, कुछ कहना हो ना, तो हर मैन को जवाब देना जरूरी नहीं है। केवल फ्यू को आप रिप्लाई करते हो। और सेंसर सबके द्वारा हो जाओ।
अगर कोई आपको कोई बात समझा रहा है तो बुरा ना मानो, मतलब ऐसा ना सोचो कि अच्छा अब आप मुझे समझाओगे, अरे क्यों नहीं समझा सकते, सब आपको समझा सकते हैं, क्योंकि अगर उसके नजरिए से आप गलत हैं तो ही और शी कैन मेक यू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। और यू शुड कीप योर माइंड ओपन कि आप उसे सुन सको, उसे समझ सको, लेकिन रिजर्व दाई जजमेंट, हर जगह निर्णय नहीं दे देना चाहिए, हर जगह निर्णय नहीं दे देना चाहिए। इसलिए निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए और हर जगह बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं प्रेफर साइलेंस, इसीलिए साइलेंस को गोल्डन कहा गया है, सिल्वर को, स्पीच को सिल्वर कहा गया और साइलेंस को गोल्डन कहा गया है। रीजन ये है कि ज्यादा बोलने से फालतू की बातें निकल आती है, इसलिए कीप रिजर्व। बाहर जा रहे हो इसलिए बहुत जरूरी है, हर किसी से जुबान नहीं लड़ाना है, हर किसी से बहस नहीं करना है, हर किसी की बात मान नहीं लेना है। फ्रांसिस बेकन ने भी कहा था, बट टू वे एंड कंसीडर, किसी की बात का सुनना गुनाह नहीं है, किसी ने आपसे बोल दिया ये गुनाह नहीं है, बट आपने उस बात को सही ढंग से कंसीडर नहीं किया, सही ढंग से आपने मापा तौला नहीं, ये आपकी गलती है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, है ना, मीन्स यू विल हैव टू सी वेदर द पॉइंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। द मैन हु इज टेलिंग यू फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी डिफरेंट. So it's not that you should be imposed or you should take the judgment from other person for yourself. You should take your own judgment, and if you have any judgment, keep it reserved. वकील को आप कभी देखो कोर्ट केस में, वो पहले दिन से शुरू हो जाता है, लॉर्ड माय क्लाइंट इज इनोसेंट। पहले दिन से वो इतना बोलता है, दोनों बोल रहे हैं, इनोसेंट दोनों बोल रहे हैं, और सामने वाला बैठा हुआ जज कुछ नहीं बोलता है। जब वो बोलते हैं तो उनको सुनता है, ओके ओके, पॉइंट करता रहता है। फिर जब वो बोलते हैं तो उनको भी सुनता रहता है, ओके, और लास्ट में जजमेंट दे देता है। 3 साल के बहस के बाद एक लाइन का स्टेटमेंट, द मैन इज फाउंड गिल्टी मस्ट बी हैंग्ड टिल डेथ, खत्म हो गया। मस्ट बी रिजर्व्ड, किसी को बताता नहीं उसके पहले कि जजमेंट हम क्या देने वाले हैं, नहीं तो उसी को हैंग्ड कर दें। बुद्धिमान आदमी को यह भी समझना पड़ता है ना, दैट्स वाई रिजर्व दाई जजमेंट। सबको बताते ना फिरो कि आप करने क्या वाले हो, सुन लो सबकी। सबको अच्छा लगता है दूसरों को समझाना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना, तो अच्छा लगता है, दूसरों को समझाना अच्छा लगता है। सुन लो, उसको भी खुशी मिलेगी, चलो कल्पना ने मेरी बात को सुना। डिसीजन कल्पना का अपना रहेगा, है ना। रिजर्व दाई जजमेंट, द पॉइंट इज हियर। नाउ विल गो विद द नेक्स्ट वन फ्रॉम पोलोनियस अगेन। Therefore, since brevity is the soul of wit, therefore, since the brevity is the soul of wit, oblique, and tediousness the limbs, and tediousness the limbs, and outward flourishes, and outward flourishes, oblique, I will be brief, I will be brief, semicolon, your noble son is mad, your noble son is mad,
Okay, the statement comes to Gertrude. In Act 3rd, Scene 4th. In Act 3rd, Scene 4th. Okay. Since brevity is the soul of wit, जर्ट्रूड को समझाता है कि देखिए, हर बार हर बात को बहुत डिटेल में नहीं बताया जाता। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, मैंने कई बार इसकी चर्चा भी की आपसे। हर बार हर बात को बहुत डिटेल में नहीं बताया जाता है। ज़्यादातर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कम बातें करके सारी बातें कर लेते हैं। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये जो ब्रेविटी होती है ना, जो जिस्ट होता है, जो पॉइंटेड सेइंग होता है, वो बुद्धिमान लोगों की पहचान होती है। ये जो विट की सोल होती है, जो बुद्धि की आत्मा होती है ना, वो कौन होता है? ब्रेविटी। इसीलिए कहा जाता है कि विद्वान लोग ज्यादा बात नहीं करते, वो उतना ही कहेंगे जितना जरूरी है। अब उसको समझने वाले पर डिपेंड करता है कि वो जैसे भी समझे। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट एंड टेडियस द लिम्स एंड आउटवर्ड फ्लॉरिशेस। आई विल बी ब्रीफ। देखिए, मैं जो आपसे समझाना चाहता हूं वो आप ऐसे समझिए कि सारी चीजें टेडियस लग रही हैं, बोर्डम से लग रही हैं, मतलब जो शरीर के अंग भी हैं वो कांप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो मैं इस शॉर्ट में आपको समझा देना चाहता हूं, बहुत आपसे नहीं बात कराऊंगा और कहूंगा, और सिर्फ इतना कहूंगा, योर सन इज मैड। मतलब मैं जो समझाना चाहता हूं वो हाथ में तलवार लिया है, गुस्से में गाली बड़बड़ाता हुआ चला आ रहा है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। कुल मिलाकर के आपका जो बेटा है वो अपनी बुद्धि खो चुका है और वो पागल हो गया, किसी भी वक्त आ सकता है। आप इस बात को समझ लो। और जैसे मैंने कहा कि उसी टाइम उसकी एंट्री होती है और वो बाद में छुपने की कोशिश करता है, वहीं पर उसका मर्डर हो जाता है। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट फ्रॉम अ ब्यूटीफुल टेडियस पर्सन। टेडियस पर्सन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इनके लिए आता है स्टेटमेंट में। बार बार बात दोहरा रहा हूँ कि एक बुद्धिमान आदमी जिसने अपने प्रलय का रास्ता खुद तैयार किया था वॉज पोलोनियस हिमसेल्फ। इतने प्रैक्टिकल बातें करने वाला, इतना बुद्धिमान आदमी खुद अपनी बर्बादी का रास्ता तैयार कर लेता है। So that is Polonius himself. Going with the next statement. Act second, scene second. Okay, चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लीजिए इसको। मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ भी होना चाहिए, शायद देख लेंगे। ओके, चलिए। We go with the next statement from Fortinbras. Fortinbras. O proud death, O proud death. Second. Okay, just change it if it is second. O proud death, oblique. What feast is toward in thine eternal cell, toward in thine eternal cell, oblique, that thou so many princes at a shot so bloodily has struck
Okay, that comes from 14 verse in Act 5th, scene 2nd. Actually, इसमें जैसे मैंने कहा कि प्राउड डेथ क्यों एड्रेस कर रहा है, क्योंकि सच में कभी कभी शिकार अच्छे मिल जाते हैं भाई। डेथ तो हमारा शिकार करती है ना, और कभी कभी हम उनके शिकार हो भी जाते हैं, और ऐसे शिकार तो बड़े कम होते हैं। वो प्राउड डेथ कहता है उसको। लास्ट में क्या कहता है? एट अ शॉट, एक शॉट में, एक समय में, एक वक्त में इतने ढेर सारे आपने रॉयल ब्लड, सो ब्लडली हैज स्ट्रक, कितनी कातिल तरीके से तुमने इतने ढेर सारे रॉयल ब्लड को एक साथ मारा है। क्या कोई तुम्हारे यहां फीस्ट है? कोई त्योहार मना रही हो? इतने ढेर सारे शिकार करके इनका भोजन बनाने का प्लान बनाया, कोई त्योहार है, सेलिब्रेशन? क्यों ऐसा किया है? और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक पूरा खानदान खत्म हो गया एंड यू प्राउड डेथ। डेथ तुम्हें अपने कारनामे पर प्राउड फील हो रहा है। ऐसे मतलब बिना काम के कोई मर गया है। युद्ध में आदमी एक दूसरे को मारते हैं, दैट इज द रीजन बिहाइंड कि हम मैदान जंग में हैं। लेकिन यहां तो घर के लोग थे और तुमने इतने लोगों का खून बहा दिया और खुश हो। कोई फेस्टिवल मना रही हो? तुम्हें कितने शिकार चाहिए थे? एक शॉट में इतने ढेर सारे लेग चल दी, इतना खून क्या करोगी? सर्व करोगी किसको? क्यों किया ऐसा? चलो अगेन फ्रॉम हैमलेट। There is a special providence. There is a special providence in the fall of sparrow. Dash dash dash, the readiness is all. The readiness is all. Full stop. Since no man comma of aught he lives, of ought he lives, Leaves, comma, knows what is it to live betimes, what is it to live betimes, comma, let be. To Horatio in Act 5th, scene 2nd. Act 5th, scene 2nd. Okay, there is a special providence, the fall of sparrow, जो कहता है कि देखो, आप चिड़िया देखते हो ना, स्पैरो, उसका काम तो उड़ना है, लेकिन कैसे गिर जाती है? फॉल ऑफ स्पैरोस। इसमें ना एक स्पेशल प्रोविडेंस है, एक अलग सी समझ है, एक अलग सी सोच है। किस बात की सोच? कि कभी न कभी हर एक वस्तु को किसी न किसी तरीके से गिरना ही होता है। जो कल गिरा था वो कल न गिरा होता तो आज गिरता। जो आज गिरा है या जो अभी गिरा है वो अभी न गिरा होता, अभी के बाद आज गिरता। जो आज गिरता है वो आज न गिरा होता तो आने वाले कल को गिरता, गिरता जरूर।
तो मेन मैटर क्या है? रेडीनेस। रेडीनेस इज ऑल। पेपर आएगा जरूर। जो हो गया है वो हो गया है, जो होने वाला है वो है, जो है वो होगा भी। आज होगा या कल होगा, होगा तो जरूर। तो मैटर इसका नहीं है कि होना है, मैटर इसका है कि रेडीनेस। तैयार आप कितने हैं? आज हो रहा है तो आप कितने तैयार हैं? 10 दिन बाद हो रहा है तो कितने तैयार हैं? क्योंकि आपको तैयार रहना पड़ेगा। रेडीनेस इज ऑल। सब कुछ छोड़कर एक बात समझ लो कि आपको हमेशा मौत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मौत को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि जब स्पैरो उड़ने के लिए बनी है और गिर सकती है तो सब कुछ गिर सकता है। हम भी खत्म हो सकते हैं वक्त के अनुसार। वक्त जब चाहेगा तभी हर चीज होगी, क्योंकि हर फॉल में देयर इज अ प्रोविडेंस। एक समझ होती है, एक सोच होती है हर फॉल के साथ। और इन्होंने आगे कहा कि सिंस नो मैन ऑफ ऑट ही लिव्स नोज व्हाट इज इट टू लिव बे टाइम लेट बी। क्योंकि कोई भी इंसान जो इस जमीन पर है ना, वो ये जानता ही नहीं कि उसको छोड़ना क्या है। वो जानता ही नहीं उसको छोड़ना क्या है, और छोड़ता सब कुछ है। लेट बी। तैयार रहो छोड़ने के लिए। आपको नहीं मालूम है कि आपको क्या क्या छोड़ना है, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा अपने उस माँ को भी छोड़ने के लिए, जिसको कभी आप अपनी नज़रों से दूर नहीं देखना चाहते हैं। अपने उस हस्बैंड और वाइफ को भी देखने के लिए छोड़ना पड़ेगा, जिसको आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो आपसे दूर जाए। आपके वो बच्चे भी आपसे दूर चले जाते हैं। क्यों? There's a special providence। ये डिविनिटी प्रोविडेंस, सब कुछ उसी का खेल है। सबको फॉल के लिए तैयार रहना है। कुछ भी आपके पास बचता नहीं, सब कुछ आपसे छीन जाता है। लेट बी। जो जा रहा है उसको जाने दो। होरेशियो, मुझे रोकने की कोशिश ना करो। मेरे अंत का समय यही था, मेरा अंत हो गया है। तुम्हें अभी रहना है, तुम्हें अभी कहानी सुनाना है, तुम्हें अभी बहुत कुछ बताना है, बट आप लोगों को नहीं रहना है, आप लोगों को जाना है। तो आज एक्चुअली इतने फेमस स्टेटमेंट थे कि मैंने कोशिश तो की कि मैं इसको जल्दी से फिनिश करूं, वाइंड अप करके और आपके साथ मिल जाऊं, बट कुड नॉट डू इट। इसलिए नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू विद ओथेलो, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।